Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata all. Thank you for joining. And आज हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय जो हमने पिछले सेशन में ख़त्म किया था, उसको ओवरऑल दूसरा, बिकॉज इट्स काफ़ी लंबा है, इट्स टू लॉन्ग, तो विल जस्ट रन थ्रू just to know what is second chapter, and then if time permits we'll take start third chapter. Hare Krishna. So thank you once again, and just let me spotlight. Okay, तो yeah, तो last week हम लोगों ने second chapter खत्म किया था, and it's been very long, so we'll just have a brief overview of second chapter. What was second chapter? So actually second chapter is in sections and subsections, so we'll see that. तो जो second chapter है, the shloka number 1 to 10 is Arjuna's doubts and his surrender. So in first chapter we have seen 4 reasons of Arjuna not to fight. We've seen that was compassion, enjoyment, then it was fear of sinful reactions, destruction of family traditions. We have seen these 4 reasons Arjuna was not wanting to fight, and in this 5th shloka he talks of indecision, like he's not sure whether I should fight or I should not fight. So I'll just share the screen, the shlokas, and then maybe we can run through. Okay, so this is the first shloka where we see Arjuna is in lamentation. Arjuna बहुत दुखी है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, and then Lord Krishna, Bhagavan Krishna, starts talking, and he's immediately chastises him, like from where this dirt has come within your mind, and it is not at all an Aryan culture. It says Anarya Justam. It is Anarya, it's not Arya, and Aswargan. It will not even give you Swarga, and Akirtikar, it will give you infamy. So this is what Lord Krishna says, and then is further थोड़ा heavy हो जाते हैं, बोलते Klaibyama, from where this impotency has come in you. It says that, and Shudra Hridaya Daurbalyam, like his heart is very weak. वो बोलते हैं, तब अर्जुन बोलते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन. He's saying, how can I face my own grandfather and my teacher who are Pujarha Arisudana, who are worshipable? तो मैं कैसे उनसे युद्ध करूं? This is what he's asking. And then he's saying Guru ne hatva. He like how can I kill my own my guru? This is what he's saying. And even if I get Bhunjiya Bhogan Rudira Pratigdan, even if we get something, it will be with full of the blood of my own relatives. This is what he says. And on 7th, he's saying Karpanyado, he surrenders. Like till now he was in confusion.
he had doubts whether I should fight or I should not fight. And in 7th, he does the best thing. Like if one person is confusion, then he surrenders. Now what should I do? So he surrenders to Lord Krishna. और भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं? I am surrendered unto you. Please you tell me. Yes, Shreya Syam Nishchitam Purohitam. With Nishchit. With what is that exact word? I am fully surrendered soul to you. Please tell me now what is to be done. So this is what confidently is saying. Nishchita means confidently you tell me what is to be done. And this goes up to shloka number 10. And then from shloka number 11, as soon as जैसे ही वो सरेंडर करते हैं तो भगवान जो है इमीडिएटली वो गुरु का रोल ले लेते हैं. टिल नाउ ही वाज फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स. So even Lord Krishna was taking it lightly because he was talking on a friendly basis. But as जैसे ही भगवान को समर्पण कर देते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, तब भगवान जो है गुरु का रोल ले लेते हैं. एंड व्हाट इज गुरु's रोल? सबसे पहले he chastises. What is saying? Asocyan anvasocastam. Like you are lamenting on that which is not to be lamented. So nanu sochinte panditaha. You are talking like a learned. You are talking like a pandita. That means he is saying you are a fool, but you are talking like a pandita. So immediately he becomes very heavy and is taking the role of a spiritual master. And then यहाँ से लेके 11 से लेके 30th तक जो है पूरा you can say it's ज्ञान कांड, like ज्ञान सेक्शन, जहाँ पे सांख्य योग जो है वो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे आत्मा अमर है. तो he starts by telling that never was it time, and sorry to disconnect. Okay, so he's saying never was a time when I didn't exist, you didn't exist, nor all these kings existed. Means he is talking of past, and then in future also it is never going to happen. Like means what he's saying indirectly, they were always there, they are now present, and in future also they will be present. So this is what Lord Krishna is saying. That means they are eternal. This is the point. ये जो point है ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं. And then he starts talking of difference between body and the soul. आत्मा और देह के बारे में जो फर्क है वो बताना शुरू कर देते हैं. He is saying dehino asmin. Like the person who is staying within the deha is called dehi. So that is atma. So he is saying he passes from boyhood to youth and youth to old age. So body changes, but that the atma never changes. So पूरा जो आत्मा का जो गुण है यहाँ पे बताए गए हैं. He is saying again, यहाँ पे बोलते हैं कि all the situations like sukha or dukha, they are temporary and we must tolerate them. We should not get disturbed by them. And this is what goes. And then he says Avinashi. It is Avinashi. Our Atma is Avinashi and it is all pervading. It is pervading throughout our body. Even जैसे हम लोगों ने देखा आत्मा जो है वो हमारे हृदय है, मतलब in the region of heart it is situated. It is situated over there. But like light, जैसे एक लाइट होता है वो एक रूम में ही कहीं पे एक स्थित होता है लेकिन उसका प्रकाश पूरे रूम में होता है, वैसे ही जो आत्मा है वो हार्ट के रीजन में है लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरे बॉडी में होता है. अगर पाँव में भी कहीं पे लग जाता है तो इमीडिएटली वी आर कॉन्शियस. तो ये हमने देखा 17 में. और फिर देन ही कीप्स ऑन टॉकिंग. फिर इस अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान और एक गुण बताते हैं
कि न ये कभी जन्मता है न जायते म्रियते वा, कभी जन्म लेता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। दैट मीन्स ये आत्मा जो है ये एटर्नल है, शाश्वत है। और वही बोलते हैं अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये अजय है, नित्य है, शाश्वत है, एंड पुराण, इट इज वेरी वेरी ओल्ड। न हन्यते हन्यमाने, इट कैन नाइदर बी किल्ड और इट कैन किल समबडी। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो हम लोग कपड़ा बदल देते हैं, वी चेंज अवर क्लोथ। सिमिलरली व्हेन आवर बॉडी, वैसे ही हमारा शरीर जब जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये जो आत्मा है उसको त्याग देता है। नवानि गृह्णाति नर अपराणे, तो वो नया जो शरीर है वो ग्रहण करता है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन श्लोका नंबर 22 एंड इन 23 इज सेइंग कि ओके इट्स लाइक हिज आंसर टू भगवान कृष्ण कि मैं भी, मतलब मैं उसको मार सकता हूँ, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे शस्त्र हैं, तो वेदर इट कैन बी किल्ड। टू दैट लॉर्ड कृष्ण इज आंसरिंग नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न इसमें इसको हम लोग काट सकते हैं इसको शस्त्र से, न इसको जला सकते हैं। लाइक ही सेइंग विथ योर स्वॉर्ड यू कैन नाइदर कट इट, or even if you have brahmastra you cannot burn it, neither by your varunastra you can moisten it, or not by your vayu astra you can, मतलब इसको सुखा सकते हैं। ये बोलते हैं these are the characteristics of the atma, and he repeats that and he says कि another characteristic, it is sarvagata, it is present everywhere, it is not only on our earth planet, but हमने जैसे देखा था मून पे भी है, सन पे भी है, सन ग्लोब पे भी है। सो दैट जीवात्मा इज एवरीवेयर एंड वी हैव सीन practical examples of some bacteria which are called as thermophiles, which even scientists are agreeing to it, which stays up to in a temperature of 300 to 400 degrees centigrade. So ये हमने देखा था, even scientists now believe that these things. फिर we have seen this till भगवान जो है ये आत्मा के बारे में श्लोका नंबर 30 तक बताते हैं कि इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट। ये हमने श्लोका नंबर 30 तक देखा था। सो वो बोलते हैं कि जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु, 27 में बोलते हैं इट इज वन हु हैज टेकन बर्थ, जिसने जन्म लिया है पक्का उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु हुआ है निश्चित ही उसका फिर से जन्म होगा। तो दिस इज व्हाट इज सेइंग। सो डोंट वरी कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें मारना पड़ेगा, तो जिसको तुम मारोगे वो पक्का वापस फिर से जन्म लेने वाला है, इज गोइंग टू टेक बर्थ अगेन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन अप टू श्लोका नंबर 30। और श्लोका नंबर 31 से यहाँ पे आगे भगवान कृष्ण 38 तक, अभी तक उन्होंने सांख्य योग बताया कि दिस इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ आत्मा। अब श्लोका नंबर 31 से 38 तक जो है कर्म कांड सेक्शन है, मतलब तुम ये करोगे तो ये फायदा होगा, ये करोगे तो ये फायदा होगा। तो वो कर्म कांड के एंगल से भगवान जो है उसको समझाने। ठीक है, चलो तुम ये बात नहीं मानते, आत्मा को कभी नहीं मरता बाय नॉलेज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके, देन ही टेक्स अनदर एंगल व्हिच इज कर्म कांड। बोलते हैं कि तुम, ये तुम्हारा स्वधर्म है, ये तुम्हें करना ही है, बिकॉज यू आर ए क्षत्रिय, यू हैव टू डू दिस। कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज ए क्षत्रिय, you should know that there is no better engagement for you than fighting। यानी बिकॉज यू आर क्षत्रिय, तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। सो डू नॉट हेजिटेट, ये भगवान बोलते हैं। 32 में बोलते हैं इदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो वन फॉर क्षत्रिय व्हाट इज हैपनिंग इज स्वर्ग द्वारम अपावृतम, इट ओपन्स द डोर ऑफ द heavenly planets. So if you are fighting, even if you lose, even if you die in that battlefield,
you are going to go to heaven because doors of open will heaven will be open for you. फिर श्लोका नंबर 33 में बोलते हैं कि if you don't do this स्वधर्मम, so then you will lose your कीर्ति and you will gain sins. बोलते ये नहीं करना है तुम्हें. And then in 34 फिर से भी बोलते अकीर्ति, तुम्हें अकीर्ति होगी तुम्हारी, you will be defamed and मरणाद अतिरिच्यते. So that akirti will be worse for you. It is dishonor which is worse than death. तो जैसे हमने देखा कि for a honorable person insult is worse than death. He may die once, but if he is dishonored, then that insult remains for the whole life. उसके पूरे जीवन में वो उसको याद रहता है. And हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ऐसे, जैसे जयद्रथ when जब उसने द्रौपदी का अपहरण किया था और उसको उठा के ले गए, तो भीमा was the one, he ran so fast, he went ahead of that ratha, he stopped that, उसको पकड़ा, उसको उतार के he brought back both of them, Jayadratha and Draupadi, and they insulted him because they couldn't kill him because उनकी बहन का पति था वो, because he was husband of Duryodhana's sister, because they are all brothers and sisters. So he was their what you say, I don't know the exact word, but उनकी बहन का पति था वो. तो उसको मार नहीं सकते, तो क्या करें, बोला उसका इंसल्ट कर देते हैं. एंड उसको फिर जो है उसको सर पे पूरा गंजा कर दिया एंड 5 जगह पे उसको ऐसा चोटी छोड़ दिया. एंड दैट he repented his whole life. इतना उसका इंसल्ट कभी नहीं हुआ था जयद्रथा का, because he was very powerful, he was very strong, and for a strong person to be insulted like this is very very bad. And he goes for तपस्या, वो शिव जी को प्रसन्न करता है, हमने देखा था, और शिव जी से वर मांगता है कि मैं पांडवों का वध कर सकूं. बोला ये तो पॉसिबल नहीं. बोला अच्छा ठीक है, मैं उनको हरा सकूं. बोला ये भी पॉसिबल नहीं. बोला आई विल गिव यू बेनेडिक्शन, एक दिन के लिए तुम उनको रोक सकोगे, for one day you will be able to stop them. And this is where he used to stop Arjuna जब ये चक्रव्यूह में चले गया था. So this is where he used. So you can see जो dishonor जो है वो मृत्यु से भी भयंकर है, because that was eating him throughout his life. फिर हमने देखा 38 तक same thing is going on, that you have to fight, and if you fight you will get hato va prapsisi swargam, either die and go to swargaloka, say jitva va bhokshasema, or either live, you win this battle and enjoy this kingdom. So earlier भगवान ने बोला तुम आत्मा कभी नहीं मरता, ज्ञान. now जो है कर्म कांड, if you fight you are going to get this, you are going to get this. So this is up to 38, and then from 39 to श्लोका नंबर 53 भगवान यहाँ पे बुद्धि योग के बारे में बताते हैं. That is you have to fight without any reaction, you don't expect anything. So this is there up to 53, and there were many important shlokas we have seen. Neha Bhikramana asti, like even slight bhakti is going to save us from सबसे बड़ा से बड़ा जो भय है, त्रायते महतो भयात्, उससे हमको बचाता है. Then this is one shloka, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना. So जो भक्ति करना चाहता है, he is very very focused, व्यवसायत्मिका बुद्धि. And जिसका व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होता, they are many branched, so they cannot never do भक्ति. ये है. And फिर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, who are very much जो भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी पॉसिबल नहीं. वो कभी समाधि या मतलब जो है डिवोशनल सर्विस या भक्ति नहीं कर सकते, ये देखा था. फिर
भगवान ये भी बोलते हैं त्रैगुण्य विषयाविदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मा। तो भगवान ये बोलते हैं कि 3 गुण है, लेकिन तुम्हें निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इन तीनों गुणों के परे जाना है। वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। ये हमने देखा था, सॉरी देयर आर सम एड्स कीप्स इन बिटवीन पॉपिंग अप। ओके, फिर बहुत ही फेमस श्लोका देखा था हमने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इट इज लाइक द क्रक्स ऑफ दिस, ये जो सेक्शन है बुद्धि योगा का। यू जस्ट फाइट, एक्सपेक्ट मत करो मैं हार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे गुरु मर जाएंगे, या मुझे राज्य मिलेगा, या मुझे स्वर्ग मिलेगा। नो, जस्ट कर्मण्य एवा, यू हैव राइट ओनली टू डू योर कर्मा। मा फलेषु कदाचन, यू डोंट इवन एक्सपेक्ट, फल की कामना मत करो। मा कर्म फल हेतुर्भुर, डोंट थिंक दैट आई एम द कॉज, बिकॉज वट एवर यू आर गेटिंग, ओके ठीक है, आई डोंट वांट द रिजल्ट, बट आई एम द कॉज। डोंट इवन थिंक दैट आई एम द कॉज, मेरी वजह से ये हुआ है। तो समटाइम्स समथिंग गुड हैपेंस, इट डजंट टेक एनीथिंग, बट he keeps on telling his whole life, ये मेरे वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुई। तो he's saying in even don't do that, मा कर्म हेतु फल हेतुर्भुर, you are the cause of it। and then he say माते संगोस्त अकर्मणि, and he's saying finally, कोई सोच सकता है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है, और मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे वजह से हुआ है, then why should I do this work? So he's saying mate sangusta akarmani, so don't even get attached to that akarma, you have to do your karma। so this is the, you can say, the crux of the whole this buddhi yoga, and this goes up to 53। ये एक श्लोक है, we should remember, because इसके बेसिस पे जो है अभी श्लोक 3rd चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। so what Lord Krishna is saying, भगवान क्या बोल रहे हैं, दूरे न ही अवरम कर्म। बुद्धि मतलब जो अवरम यानी जो बुरे कर्म है उनसे दूर रहो, और बुद्धि योग में तुम लगे रहो। तो यू विल सी हाउ दिस पॉइंट अर्जुन इज स्पीकिंग अप इन 3rd चैप्टर, वो हम लोग देखेंगे। फिर ऐसा चलता है टिल 53 तक, और 54 से यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछता है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके बारे में आप बता रहे हो, ही इज कॉलिंग हिम हैज स्थितप्रज्ञ, उसको स्थितप्रज्ञ के नाम से पुकारते हैं। एंड वो पूछते हैं उसका क्या लक्षण है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है। सो आचार्य बोलते हैं कि ही इज ट्राइंग टू लर्न ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू नो, दैट्स व्हाई ऑन दैट बैकग्राउंड अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहा है कि स्थितप्रज्ञ जो है, यानी जो पोजीशन है इस तरह का, जो समाधि का जो है कि कुछ भी नहीं चाहिए, या जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो बुद्धि योग पे कर्म कर रहा है, तो उसके क्या लक्षण, हाउ विल आई नो। सो ये जो है अर्जुन प्रश्न पूछते हैं इस 54 में। और अगर हम लोग देखें 55 में भगवान उसके जनरल सिम्टम्स बताते हैं। तो उसके जनरल सिम्टम्स क्या है कि ओ पार्थ, व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल वैरायटीज, मतलब ही हैज गिवन अप हिज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई इंद्रिय की तृप्ति की कामना नहीं है, देन ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, and that kind of person is pure in transcendental consciousness। फिर 56 और 57 में भगवान उत्तर देते हैं कि how does he speak, what does he do। तो दुखेश्वर, he is not disturbed, दुखेश्वर अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्न नहीं होता दुख से, और सुख से वो खुश भी नहीं होता, और राग, भय और क्रोध, इन तीनों को उसने छोड़ दिया है। And such kind of person स्थितधीर मुनि उच्यते, person is called स्थितधीर मुनि। और 57 में
है 56-57 में। फिर 58 से 59 दो श्लोक में हाउ इज एबल टू, हाउ पूछते हैं किम आसित है, हाउ डज ही सिट मीन्स हाउ डज ही कंट्रोल हिमसेल्फ, और हाउ डज ही स्टे काम। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस श्लोक है वो कुर्मा वाला, टॉर्टोइस वाला, कि जैसे टॉर्टोइस यानी कछुआ जो है, कुर्मा, अपने आप को अपने शेल में बचा के रखता है, अपने पांचों अंगों को खींच के रखता है जब भी कोई भय का समय आता है, वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी जैसे कोई खतरे का समय है, भक्त के लिए खतरे का समय है इंद्रिय तृप्ति, तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आता है तुरंत वो अपने सेंसेस को उससे दूर कर देता है। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग। ये एग्जांपल देते हैं एंड वो कहते हैं कि लोअर जो है टेस्ट छोड़ के हायर टेस्ट में जब बढ़ता है तब वो ऑटोमेटिकली उसका जो लोअर टेस्ट है वो छूट जाता है। ये 58 एंड 59 में। और फिर 64 से 71 में भगवान व्रजेत किम, how does he walk, means how does he respond to such things in life। भगवान 64 से जो है 671 तक वो उसको रिस्पॉन्ड, मतलब कैसे रिस्पॉन्स होता है वो बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि if person is free from attachment and aversion, he is able to control his senses and अगर ऐसा होता है तो प्रसादम अधिगच्छति, he receives the mercy of the Lord। फिर प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो इन जो 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 दुख हैं या जो मटेरियल एग्जिस्टेंस के जो मिजरीज हैं उनसे वो उसके लिए कभी ये नहीं रहती है। एंड ऐसे कॉन्शियसनेस में वो हमेशा प्रसन्न चेतस है, ही इज ऑलवेज हैप्पी सेटिस्फाइड। फिर आगे कहते हैं वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, न तो ही उसको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, तो उसको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं हमने देखा था, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल। तो जो मटेरियल इंटेलिजेंस वाले हैं बहुत से लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई है, जैसे साइंटिस्ट है या बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सीए, वो आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, वो आर डिस्कवरिंग समथिंग। तो यहाँ पे उस प्रकार की बुद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आध्यात्मिक बुद्धि ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रहा है। तो अगर उनका बुद्धि इसमें रत नहीं है तो उनको कभी शांति प्राप्त नहीं होगा, ये भगवान कहते हैं। और ये भी एक अच्छा श्लोक है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड इवन वन, एक भी इंद्रिय हमारी अगर लूज पड़ गई, चाहे वो आँख हो, कान हो, नाक हो, जिह्वा हो, अगर एक भी अगर हमने उसको ढीला छोड़ दिया तो कैसे एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है वो किसी बोट को अपने खींच के लेके जाती है, वैसे ही ये भी इंद्रिय जो वेग है ये भी हमको ले जा सकता है। एंड दिस गोस अप टू 71। तो यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा एक श्लोक है, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि डिजायर्स आती रहती हैं, लेकिन जैसे समुद्र है, समुद्र इज ऑलवेज रिस्ट्रेन, कितना भी लाखों लीटर पानी है बट वो कभी अपना बाउंड्री नहीं छोड़ता। वैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, कितनी भी इच्छाएं उसके मन में आए वो उसको कभी वो अपने लिमिट के बाहर नहीं जाता, ही डजंट क्रॉस हिज बाउंड्रीज, वी कैन से ही इज मोर फोकस्ड ऑन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे ये जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पे ये खत्म होता है। एंड दिस इज द समरी ऑफ सेकंड चैप्टर and I will stop here and quickly I don't think there should be any doubt, but if there is some doubt or questions we can take that. Hare Krishna.